Hello students, welcome to my channel Anita Mathematics Classes. I'm your maths mentor Anita. We are going to discuss a question which is X salary is half of Y salaries if X got 50% rise in his salary and Y got 25% rise in his salary, then the percentage increase in combined salary of both is. Okay, in the question given that, okay, what the information given that X salary is half of Y salary. So let the X salary is equals to X rupees and salary of Y equals to Y rupees. According to the question, X salary is half of the Y salary. It means Y equals to 2X. Okay. Now, percentage increase means salary increase. Increase in X salary. X salary equals to 50% of X. 50% of X meaning 50 upon 100 into X, which means 1x by 2. 1 by 2x. This is the increased salary. Now new salary of X. What is the new salary of X? Which is X means old salary plus increment, which is 3 by 2. X 3x by 2. Okay, now taking LCM, simplify it, which is 3x by 2. Okay, now come to the next. Okay, Y got 25% increment. Yes, so increment of Y is 25%, means increase salary of Y equals to 25% of Y, which means 25 upon 100 into Y. This is 1 by 4. That means Y by 4. Yes, new salary of Y. New salary of Y equals to, this is Y plus Y by 4, which is equals to 5Y by 4. Okay, now combine. Question asks that the percentage increase in combined salary of both. So combined salary original combined salary. Original combined salary. What is original combined salary? Means X plus Y and value of Y equals to 2X. Yes, in the information, value of Y equals to 2X. That means X plus 2X equals to 3X. Okay, now new combined salary after increment. New combined salary equals to, this is 3x by 2, 3x by 2 plus 5y by 4. Okay, now put the value of y here. So this is 3x by 2 plus 5 into 2x upon 4. Simplify it. So you get 3x by 2 plus 5x by 2. Now take LCM and divide x. Okay, अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Increase. Question asked that increase percentage. So increase percentage meaning this is a increase. How we find out the increase percentage? Okay, increase percentage का मीनिंग क्या है? जितना आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज अपॉन में जो आपके पास ओरिजिनल सैलरी थी, क्योंकि देखो कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? ओरिजिनल सैलरी से, एंड नाउ मल्टीप्लाई बाय 100.
सो अभी देखिए आपके पास प्रीवियस की जो सैलरी थी वो 3x थी दोनों की कंबाइंड, नाउ इंक्रीज होके कितनी हो गई 4x, तो इंक्रीज कितना हुआ विच इज 4x माइनस 3x एंड ओरिजिनल सैलरी 3x थी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस इज x बाय 3x इंटू 100, नाउ x से x कैंसिल आउट दिस इज 100 बाय 3 इक्वल्स टू 3 3 जा 9 मीन 33 1/3%, सो जो उनका इंक्रीज परसेंटेज है वो आपको कितना मिल गया, वो मिल गया आपको 33। ओके, ये आपके पास हो गया इतना। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन अ मैन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ x kilometer per hour and y kilometer per hour, his average speed is 4 kilometer per hour, but when he travels at these speed for equal time his average speed is 4.5 kilometer per hour, find the difference between two speed। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, दैट मीन्स कि आपके पास ये कोई डिस्टेंस है, इसमें इक्वल डिस्टेंस दिस इज डी, दिस इज डी, ये आपका इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है, ये है y किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको गिवन है एंड इसकी जो एवरेज स्पीड है, अभी देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं। सो व्हेन इक्वल डिस्टेंस, ओके, जब आपके पास इक्वल डिस्टेंस है सो आपके पास जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो कितनी गिवन है, वो गिवन है आपको 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ जब आपके पास इक्वल टाइम है, व्हेन इक्वल टाइम सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है आपके पास। सो देखो जो आपके पास टाइम कवर होगा, ठीक है, यहां से यहां तक का जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक का जितना टाइम लगेगा, वो आपका टोटल टाइम जो है वो कंप्लीट टाइमिंग के अकॉर्डिंगली होगा। यस, सो अभी देखो यहां से चलते हैं हम। सो इट मीन्स लेट द टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस जो आपके पास है विच इज 2d। यस, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। नाउ अब आपके पास टाइम कितना लगा, देखो टाइम फर्स्ट और टाइम मतलब जितना टाइम फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने में लगा प्लस उतना टाइम सेकंड डिस्टेंस को कवर करने में लगा, वो आपके पास एवरेज टाइमिंग मतलब एवरेज उसका टोटल टाइमिंग के इक्वल होगा। सो टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, ये आपके पास होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो अभी टाइम 1 जो है, ठीक है, टाइम 1 जो फर्स्ट डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा एंड सेकेंड डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगा विच इज टोटल टाइम। यस, इट मीन्स फर्स्ट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा आपको, देखो अगर फर्स्ट को कवर करने की बात करें सो डिस्टेंस, तो डी आपका डिस्टेंस है अपॉन स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर, प्लस सेकंड के लिए डी डिस्टेंस है एंड आपके पास कितना है y किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम आपके, तो डिस्टेंस कितना है d, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d अपॉन में स्पीड कितना गिवन है 4। नाउ टेक d कॉमन, दिस इज 1/x प्लस 1/y equals to 2d by 4। now simplify it, d से d कैंसिल, so यहाँ पे आपको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/x plus 1/y equals to 1/2। this is your equation number 1। yes, अभी देखो ध्यान से दूसरे पार्ट को समझते हैं। अभी उसने बोला कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है, अभी देखो सपोज दैट कि एक्स, अभी इक्वल टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो कि अब टाइम आपके पास जो है वो इक्वल है। तो देखो अभी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि आपको इक्वल डिस्टेंस भी दिया हुआ था, ठीक है, वो आपका फर्स्ट, इसमें 2 केसेस है, एक केस में आपके पास इक्वल डिस्टेंस है एंड एक केस में आपके पास इक्वल टाइमिंग है।
यस। सो अभी इक्वल टाइमिंग की बात कर रहे हैं। सो सपोज कर रही हूं मैं, ठीक है, मैंने क्या सपोज किया कि जो x किलोमीटर पर आवर है, ये सपोज दैट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और y किलोमीटर है जो वो आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर की। अगर मैं टाइम को 20 मिनट लेती हूँ, ठीक है, टाइम मैंने 20 मिनट लिया। सो अब एक चीज ध्यान से समझो कि आपके पास क्या हो जाएगा, 60 की स्पीड से चलेगा सेम टाइमिंग के लिए, तो ऑब्वियसली 40 किलोमीटर से ज्यादा है, इट मीन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यस। एंड यहाँ पे जो है 40 की स्पीड है, सेम टाइमिंग से इससे कम स्पीड कवर करेगा। सो अभी देखो जो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस है जो इसमें, वो आपके पास जो है उन दोनों का मिला के वो इक्वल मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सो अभी हम बात करते हैं, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि आपके पास जो है गिवन है, लेट आपके पास टोटल टाइमिंग, लेट द टोटल टाइमिंग आपके पास कितनी हो गई, देखो टोटल टाइमिंग आपके पास है विच इज t प्लस टी, दैट मीन्स 2t। एंड आपके पास डिस्टेंस कितना हो जाता है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, सो विच इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास हो गया। नाउ आपके पास क्या हुआ, देखिए कि इसकी बात कर रहे हैं हम, सो टाइम, अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सो d1 प्लस d2 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। सो फर्स्ट वाले के लिए स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है t, प्लस सेकंड वाले के लिए y किलोमीटर पर आवर एंड टाइम t। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, स्पीड आपको गिवन है 4.5, एवरेज स्पीड जो है आपके पास, इनटू टाइम कितना है आपके पास 2t। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, टेक t कॉमन फ्रॉम हेयर एंड दिस इज 9 इंटू t से t कैंसिल आउट, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देखो आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास x प्लस वाई, ये जो इसकी वैल्यू है ये फर्स्ट में पुट करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, व्हेन आई एम टेकिंग एलसीएम, सो दिस इज x प्लस वाई, ये हो जाएगा y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो, बात एक ही है। सो यहाँ से ये x प्लस वाई अपॉन 1/2 मिला। ना यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, सो ये आ जाएगा 9 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1/2। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहाँ से आपके पास एक्स वाई की वैल्यू मिल गई 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ आपको एक बात ध्यान से समझनी है, वो क्या है आपके पास कि अगर आपके पास देखो अभी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे आस्क है कि आपको जो डिफरेंस है वो दोनों स्पीड का वो निकालना है। सो एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आपके पास सम ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स गिवन हो, सो अगर आपको उनकी मतलब नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच इज x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां पे भी आप इंपॉर्टेंट चीजें अपनी जिस नोटबुक में लिखते हो तो आप वहां इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम में आता है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, व्हेन यू पुट द वैल्यू, सो दिस इज 9 9 जा 81 minus 4 into 18, that means 81 minus 72 which gives 9. This is x minus y whole square. Now x minus y equals to 3. अभी आप स्पीड है सो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे x plus y equals to 9 आपके पास है एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, सो एलिमिनेट करते हैं, सो दिस इज 2x इक्वल्स टू 12। नाउ वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6। अभी वैल्यू ऑफ x 6 आ गई, इस इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एक्स मीन्स 9 माइनस 6 विच इज 3। अभी देखो क्वेश्चन x और y की वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड। सो स्पीड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, विच इज x माइनस वाई, दैट मीन्स 6 माइनस 3, दैट मीन्स 3 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि क्वेश्चन में क्या था। इक्वल डिस्टेंस था तो उसका टोटल टाइमिंग इक्वल होगी, एंड जब इक्वल टाइमिंग होगा तो उसका टोटल डिस्टेंस इक्वल होगा। सो अकॉर्डिंग टू इसके हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फॉर्मूला आपके पास है। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।